آپ بھی میں دیکھا کہ ماشاءاللہ لگے پڑے ہیں نا بزنس میں ابھی جا رہے ہیں چائنا محنت کر رہے ہیں اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ ایکسلنس کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انسان کی جو بھوک ہے اور جو ہوس ہے وہ تو پھر قبر کی مٹی سے ہی اس کا پیٹ بھر سکتا ہے وغیرہ نا. تو وہ یعنی کہ اس طرح کے تھاٹس اینڈ خیالات اباؤٹ بزنس وین یو ٹاک اباؤٹ اسکیلنگ بزنسز نا, یہ لوگوں کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو باس بزنس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. آپ امیر ہو رہے ہیں, شکر کریں اللہ کا. دیٹس این آٹومیٹک ریزلٹ آف آل دا بزنس گروتھ اینڈ اسکیل. تو لیٹ دیٹ ہیپن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے آفس میں آئے ہیں فہد مسعود لون صاحب, اور ہم لوگ بڑے عرصے سے ایک دوسرے کو فالو کر رہے تھے. جو لوگ نہیں جانتے فہد بھائی کو, ہی از اے پراپرٹی ڈیولپر اینڈ ہی از ڈوئنگ ویری انٹرسٹنگ تھنگز ان دیٹ اسپیس. He has a venture called Serene Heights, which is building high rise in Nathia Gali. اور ہم لوگ ایک دوسرے کے بڑے عرصے سے لنکڈن کے اوپر فالو کر رہے ہیں, اور ہمارے جو ٹاپکس ہیں وہ بڑے سملر ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے کی پوسٹ کو ہم لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ جب یہ کراچی آئے ہیں تو ان کے ساتھ ایک سکون سے گپ شپ لگائی جائے. اور بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر بات نہیں ہو رہی, تو وہ ٹاپکس جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آئے جائیں تاکہ لوگوں کی جو انٹلیکچوئل تھاٹ ہے اس میں ویلیو ایڈ ہو سکے. تو فہد بھائی, ایک جو ٹاپک یہاں سے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی میں دیکھا کہ ماشاءاللہ لگے پڑے ہیں نا بزنس میں ابھی جا رہے ہیں چائنا محنت کر رہے ہیں, اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ ایکسلنس کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہت سی بار ایسی کبھی فیلنگ آتی ہے کہ یار یہ جو ہم لوگ پوری ایفرٹ کر رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے, کیا نقصان ہے, اور گلوبلی جو محنت کرتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اور اس کو ہمیں اوور آل اپنے بزنس کو کس طرح فریم کرنا چاہیے. اس کے اوپر آئی ووڈ لائک کہ آپ تھوڑا سا اسٹارٹ کریں. السلام علیکم سر, جزاک اللہ خیر فار ہیونگ می. اور اگین ایز the likeness was mutual کہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا, like I had someone in this similar space who was approaching business with a similar lens. تو میرا تھا کہ کوئی نہ کوئی کنورسیشن کریں گے تو کچھ نہ کچھ شاید کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو بات ڈیفینیٹلی نکلے گی. حضرت آئی تھنک وین آئی کیم ان ٹو بزنس, آئی تھنک اور اینی بڈی ہو کمز ان ٹو بزنس, جو پہلا پرسپیکٹیو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ یار پوٹنگ فوڈ آن دا ٹیبل. یعنی کہ پہلا تو وہ دیٹس دا فرسٹ پرابلم دیٹ نیڈس ٹو بی ریزالوڈ. اچھا, جب تک وہ پرابلم ریزالو نہیں ہوتی آئی تھنک آپ کیپیبل ہی نہیں ہوتے کہ آپ کسی اور پرابلم کے بارے میں سوچیں بھی, بیکاز دیٹ پرابلم از سچ اے ہیوج پرابلم کہ اٹ اوور شیڈوز ایوری تھنگ ایلس دیٹس گوئنگ آن ان یور مائنڈ. بالکل. اور ونس دیٹ پرابلم از سالوڈ, or if you are lucky enough and the circumstances and the opportunities that are given to you and you are able to maneuver them in such a way کہ آپ اس problem کو resolve کر لیتے ہیں, I think that's where the real test starts. کیونکہ پہلی چیز تو وہ basic ہے نا, وہ یعنی I think it's earning a halal income is something that's obligatory on every Muslim, ہر مسلمان کو وہ ایک obligation ہے. But once that bar is fulfilled, once that task is fulfilled, then what? وہاں سے جو ہے نا ایک وہ آئی تھنک دا اپروچ آف پیپل کمپلیٹلی نا وہ چینج ہو جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی یہ رمضان کے اندر ہی نا somebody was talking about کہ جی ہم نے اس سال کا یہ ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے اپنے بزنس کا, اور پھر اگلے سال کا یہ گروتھ ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے, تو یہ تو انسان کی جو بھوک ہے اور جو ہوس ہے وہ تو پھر قبر کی مٹی سے ہی اس کا پیٹ بھر سکتا ہے وغیرہ نا. تو وہ یعنی کہ اس طرح کے تھاٹس اینڈ خیالات اباؤٹ بزنس وین یو ٹاک اباؤٹ اسکیلنگ بزنسز نا, یہ لوگوں کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. I personally feel کہ یعنی کہ that's the worst way about looking, that's the worst way to look at a business. True. Because I think we need to first understand, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلے دیکھنا ہے, خود بیٹھ کے بندہ اگر اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرے نا کہ بھائی کیا ہے, لائک بزنس کیا ہے, یعنی واٹ از بزنس اسینشلی ڈوئنگ. دا مومنٹ ایک تو آپ کو ٹھیک ہے اٹس فلفلنگ یور پاکٹس, میکنگ یو ریچر اف اٹس سکسیزفل, رائٹ, بٹ اس کو آپ کو لیٹ سے خالی آپ کو لیٹ سے اٹس بین ڈیزائنڈ اینڈ اسٹرکچرڈ ان سچ اے وے کہ آپ کو امیر کر رہا ہے, بٹ اس کو کرتے کرتے بھی لیٹ سے آپ کچھ اور نہیں بھی کر رہے نا اس بزنس کے ساتھ, تو اس کے بہت زیادہ اسپل اوور افیکٹس ہیں جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اینڈ آئی تھنک دس از سم تھنگ ویئر یو کین پرابلی ایڈ مور کہ لائک how holistically you've been running business for such a long time as well, right? Yes. And I think mashallah 7-8 years now. بالکل 7-8 years. So in those 7-8 years I would like you to comment کہ آپ نے جس طرح business شروع کیا from scratch, and you telling me that you do not belong to a business family background نا, تو mashallah you are someone who has started off business from scratch.
right? बिल्कुल. So from day one till आज की जर्नी को अगर आप देखें तो आप I would want you to tell people exactly कि क्या spill over effects हैं जो आपके business से लोग यानी कि you feel कि these are the positive spill over effects that your business has been able to create in the society in which you are operating. बिल्कुल. इसमें मैं जो ना लोगों को एग्जांपल देता हूँ जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई हो, पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल की. तो सबसे पहले तो एक जो मुल्क में बिजनेस होता है वो उसकी जीडीपी में ऐड कर रहा होता है, और फिर उसके बाद उसकी कंपैरेटिव लैंडस्केप में भी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है, चाहे वो एक्सपोर्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो. आज हम लोग बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस देखते हैं विच आर बिल्ड अपॉन डेवलपिंग एक्सपर्टीज़, और अगर वो आपकी एक्सपर्टीज़ आ गई सिर्फ मैनेजमेंट की, तो आप देखें कि आप उस बिज़नेस को फिर स्केल कर सकते हैं. जैसे अगर आप आज दुबई जाएं तो बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं जो बिल्डिंग किसी और की है लेकिन उस मैनेजमेंट जो है वो किसी यूएस कंपनी की है. तो एक तो मुझे शुरू से ये बहुत एहसास होता था, मैंने एक किताब पढ़ी थी बिल्ड टू लास्ट, उसमें दे सर्च ओवर 100 बिजनेसेस जिन्होंने 100 साल पूरे किए हैं, और उनकी उन्होंने कुछ यानी स्पेसिफिक ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि उनमें क्या ऐसी ख़ास बात थी जो वो ये काम कर पाए. तो उसमें बज़ाहिर हमारे लोकल या इधर इस एरिया का कोई बिज़नेस नहीं था, कोई मुस्लिम फाउंडेड बिज़नेस नहीं था. तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि यार मतलब मेरी एक सोच आई कि बिज़नेस ऐसा बनाया जाए विच यू नो लास्ट लाइफ टाइम, बिकॉज एक तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट उसमें आप क्रिएट करते हैं, दूसरा एक आपका ट्रेनिंग सिस्टम इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है. यानी आप वो ट्रेनिंग जो आपके बिज़नेस के अंदर हो रही होती है, अगर आप यूनिवर्सिटी में देना शुरू करें तो बच्चे 25,000 रुपये भी देते हैं महीने के, और वही ट्रेनिंग जो है वो हासिल करते हैं जो आपको एक बिज़नेस फ्री में दे रहा होता है, और आपको पे भी कर रहा होता है. तीसरा ये कि आप जितने वेंडर्स के साथ काम कर रहे होते हैं उनके बिज़नेस चलना शुरू हो जाते हैं. चौथा ये कि आप ऑफ कोर्स टैक्स में कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं. और फिर ये कि सबसे जो आइडियल स्टेज होनी चाहिए हर बिज़नेस की वो तो ये कि आप अपनी जो बिज़नेस की सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करें. लेकिन ऑफ कोर्स that's how the world system is built ना. वो import versus export है. The more you're exporting, the more power your country has basically. Exactly. तो अच्छा इसमें होता है कि जिस तरह हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना 1-2 साल पहले शुरू हुआ है, लेकिन उसकी भी बहुत ज़्यादा रीजंस हैं कि हमारी क्योंकि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है तो इंटरनेशनल कंपेरेटिवनेस काफ़ी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन एबल टू डू इट. आई एम वेरी thankful that we are bringing now money into Pakistan, and it is businesses like us which have expanded. जैसे अगर आप Honda की स्टोरी सुने, Toyota की स्टोरी सुने, तो they were very small businesses in Japan, and Japan was nowhere to list in the world of economies back there in 1960s. लेकिन उन्होंने expertise build की automotive में, and they built cheap vehicles and efficient vehicles when the Americans were building giant huge vehicles. और फिर जो है वो आप देखें कि I think it's the 3rd or 4th biggest economy in the world, and they elevated their whole country in terms of standard of living, health and a lot of other factors. तो बॉस बिजनेस के अलावा कुछ है ही नहीं. आप ये देखें ना, so you started off from labor. This is what I want to point out to the audience, right? You started off with the people you employ, ठीक है. You talked about contributing to government revenues, ठीक हो गया. You talked about strengthening your currency by bringing in क्या नाम है export dollars, right? Exactly. और ये सारी चीजें like और अभी आई थिंक हम इस वी कैन जस्ट हैव द पॉडकास्ट ऑन दिस कि बिजनेस के फजाइल क्या हैं. बिल्कुल ठीक हो गया, क्या क्या फजाइल है बिजनेस के अंदर, बिकॉज एवरीथिंग, बिकॉज आई थिंक आई पर्सनली थिंक कि आपने कोई भी दुनिया का काम करना है, अच्छा हो बुरा हो, उसके लिए यू नीड फंडिंग. बिल्कुल. फंडिंग के बगैर दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता. बिल्कुल सही. अच्छा हो बुरा हो अलग बात है, बट कोई काम फंडिंग के बगैर नहीं हो सकता, राइट? एंड आई थिंक बिजनेसेस आर दोज व्हीकल्स और दोज स्ट्रक्चर्स जो कि आपको वो दे इनेबल यू टू डू अदर थिंग्स. आप अगर बिजनेस नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट देखें ना, एम्प्लॉयमेंट भी क्या है. अब फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट वेंडर्स, यू टॉक अबाउट योर एम्प्लॉइज. अब लेट्स से इवन इफ यू हैव लेट्स से यू हैव 100 एम्प्लॉइज, तो दैट मीन्स 100 families
are getting sustenance because of this idea and this risk that you decided to take on a particular day. बिल्कुल। आपने वो लिया। और फिर if you talk about vendors, अगर आप वेंडर्स को भी उसी लिस्ट के अंदर ऐड कर लें और वेंडर्स के एम्प्लॉइज को भी उस लिस्ट के अंदर ऐड कर लें, तो लाइक इट्स अ होल इकोसिस्टम इन इटसेल्फ, राइट? सो आई थिंक वो जो एक नोशन है ना अबाउट टॉकिंग, और ये चीज़ अक्सर आई फील दैट द मोमेंट यू आर ट्राइंग टू स्केल बिजनेसेस इन आवर सोसाइटी, और उसके अंदर एक नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच होती है। वो नेगेटिव कॉनोटेशन बेसिकली होती है कि बेसिकली पता नहीं इन्होंने क्या नाम है दुनिया की तरफ लग गए हैं, और भाई इतने पैसे क्या मैं कब्र में लेके जाऊँ? आई मीन ये मैंने पोस्ट लगाई थी लिंक्डइन में, इट बिकेम वेरी हिट ना, तो मैंने कहा बिल्कुल कब्र में लेके जाएंगे पैसे, क्योंकि वो मतलब पैसे नहीं लेके जाएंगे लेकिन उससे जो मिलने वाला अजर है वो इंशाल्लाह लेके जाएंगे। एग्जैक्टली। सो आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जैसे ही आपका वो वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया ना अबाउट पुटिंग फूड ऑन द टेबल, आई थिंक द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि यू नीड टू स्ट्रक्चर योर बिजनेस फॉर ग्रोथ। इसमें तो देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। उसके जो स्पिल हो, आप अमीर हो रहे हैं शुक्र करें अल्लाह का, के साथ साथ वो जो एक उसका एक ऑटोमेटिक क्या नाम है, दैट्स एन ऑटोमेटिक result of all the business growth and scale, so let that happen. But that's where the responsibility comes to you to understand कि भाई as a Muslim person मेरे ऊपर what does the deen tell me to do in this? True. इस situation के अंदर मुझे क्या करना है? And I think the best thing is not to stop scaling your business or stop striving for excellence in your business and growth and scale. I think कि उस वक्त जो important चीज़ है ना वो ये है कि आप खुद जायज़ा लें, एक खुद यानी कि अपने साथ बैठ के चीज़ों को एनालाइज करें, देखें कि आप अपने बिजनेस के अंदर ऐसे कैसे सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं जिनसे इस बिजनेस के जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स हैं जो आपकी ज़ात की तरफ नहीं आ रहे, उनको आप कैसे एनहांस कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर एबल टू सक्सेसफुली बिल्ड दैट द होल, मैं तो समझता हूँ कि वो बिजनेस को ग्रो करना, स्केल करना, दैट इन इट सेल्फ वो एक इबादत की फॉर्म बन जाएगी। बिल्कुल 100%। और देखिए वही बात है कि यहाँ पे आ जाती है, एक तो इंटेंशन भी आ जाती है। एक हदीस है जैसे कि भाई सहाबा जा रहे थे और उन्होंने जो है ना एक बंदे को देखा जो कि बड़ा हेल्दी था, बड़ा अच्छा था और वो मेहनत कर रहा था। तो उन्होंने पूछा यार काश अच्छा होता है कि ये मेहनत जो है ना दीन के काम के लिए करता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नैरो पॉइंट ऑफ व्यू को करेक्ट किया। उन्होंने बोला कि अगर ये बंदा जो है अपनी फैमिली के लिए कमाने जा रहा है तो ये भी अल्लाह का रास्ता है, अगर ये अपने पेरेंट्स के लिए जा रहा है ये तब भी अल्लाह का रास्ता है, अगर ये इसलिए जा रहा है कि ये हराम से बच सके तब भी अल्लाह का रास्ता है। हाँ अगर ये बोस्टिंग के लिए जा रहा है कि यार देखो मेरे पास इतनी गाड़ी है या इतना बड़ा घर बना लिया है या मैं लोगों को फ़ख्र कर सकूं, तो वो फिर शैतान का रास्ता है। तो ये तो फ्रेमिंग जो है ना वो हमारे बड़े इनिशियल डेज से दी गई है। और इस फ्रेमिंग ऑल्दो ये फ्रेमिंग इज़ होली एब्सेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। सो ये इसको फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि, और इसके ऊपर और बहुत बात करने की ज़रूरत है, बहुत कन्वर्सेशंस करने की ज़रूरत है। और उन कुछ कन्वर्सेशंस में मेरे ख्याल में कुछ एक्शन भी उनसे लिंक होने चाहिए। जिस तरह जब एम्प्लॉयज़ भी देखते हैं ना कि यार एक बंदा है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, तो वो इट फील्स across the organization. But if you are genuinely interested in the well-being of all the ecosystem and all the people which are attached with you, so that is evident as well. और हज़रत देखिए ना वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, लेट्स से अगर आपके पास मीन्स आ गए हैं तो जो आपके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है टू वरी अबाउट द वेल बीइंग ऑफ पीपल इन योर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले आपके ब्लड रिलेटिव्स की आती है। ब्लड रिलेटिव्स के बाद फिर ऑब्वियसली द पीपल हु आर यानी कि हु आर योर सब्जेक्ट्स, योर एम्प्लॉइज, द पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू, उनकी आती है। एंड देन यू गो फॉर द वाइडर सर्कल ना। पहले तो आपने अपने क्लोजर, एंड दैट्स हाउ दीन की जो गाइडेंस भी है वो ये है कि क्लोजर सर्कल को आपने इम्पैक्ट करना है। तो ऑब्वियसली आई थिंक वो जो वेलबींग वाला पार्ट है, इफ द बिजनेस इज ग्रोइंग everyone attached with the business must also grow. ये वो और वो growth नजर आनी चाहिए कि if the business is growing and all those people who are responsible for the growth of that business, तो आपको उनकी भी growth definitely नजर आनी चाहिए। तो वो ये नहीं कि I think that's the starting point. But उसके बाद ना वहाँ से असल चीज़ आती है। Because देखें एक और चीज़ अभी आई थिंक बिफोर वी सैट डाउन टू रिकॉर्ड दिस, तो हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी कि हाउ हमारे इन आवर पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी पीपल आर अ बिट रिलक्टेंट इन
spending or investing in their own businesses. हाँ एग्जैक्टली. ठीक है. अब उसके अंदर वो जो रेजिस्टेंस आती है ना, वो इसीलिए आ रही होती है बिकॉज एक विजन नहीं होता, एक सोच नहीं होती, और जिसकी वजह से आई थिंक इफ वी ट्राई टू एनालाइज डेटा, पाकिस्तान में आई थिंक हार्डली कोई बिजनेसेस होंगे, बहुत रेयर ऐसे बिजनेसेस होंगे हु हैव R&D डिपार्टमेंट्स, हु स्पेंड ऑन R&D. ऐसे बस हमारे मोस्टली बिजनेस जो है ना वो होते हैं यानी कि इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, कोई चीज़ नजर आई, कुछ किसी चीज़ का ट्रेंड हुआ और हमने उस ट्रेंड को पिकअप कर लिया और बस सोचा ही नहीं, बस हमारा अनफॉर्चुनेटली ऐसे है कि वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट क्विक मनी. वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग मार्केट प्लेसेस. लाइक हम ऐसी प्रोडक्ट बनाएं कि जिसके इर्द गिर्द एक मार्केट प्लेस को आप डेवलप कर सकें. तो वो एक चीज़ है. आई थिंक वंस द फर्स्ट स्टेप इज पुटिंग फूड ऑन द टेबल. वंस दैट इज फिगर्ड आउट एंड यू आर मेकिंग मोर मनी, देन यू थिंक अबाउट अदर्स क्लोजर इन योर सर्कल. एंड देन आई थिंक thirdly you need to think about how you can scale your business into creating something that is much bigger than yourself. And sometimes like if you get it right, so you are able to create business that even bigger than the society itself and bigger than countries. There are certain business ke apna the circle, that the economic circle that they possess is bigger than certain countries that we have in this world. True, 100%. And Israel is a great example of that, and how they've been able to use their businesses to advance their interests. And unfortunately our wealth has not been able to advance our interests. And that is, इसके ऊपर बड़ी मजे की डिबेट है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यार गल्फ में तो उनके पास बहुत पैसा है, बहुत बिजनेसेस हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया, यू नो. लेकिन इसमें भी बड़ी गेम है. मैं बताता हूँ कि देखें, देयर इज वन बिजनेस विच यू बिल्ड थ्रू हार्ड वर्क, योर स्किल्स, एंड इट इज़ नॉट जस्ट पंपिंग आउट ऑयल. तो वो जो एक प्रोसेस के थ्रू आपको वेल्थ मिलती है, सो इट इज यूजुअली डिप्लॉयड मोर मीनिंगफुली ऑल्सो. Obviously, हाँ, that goes without saying. Exactly. और जब आपको कोई वेल्थ मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ कोई आपने जैकपॉट लग गया, लकी ड्रॉ हो गया, तेल निकल आया, तो जाहिर सी बात है वो आपको जो सिस्टम्स जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं, वो तो आपको उनकी एक्सपर्टीज है नहीं. तो वो फिर क्या है कि उनकी जो स्पेंडिंग होती है वो भी इतनी एफिशिएंट नहीं होती. तो गलती उनकी भी नहीं है, मैं समझता हूँ. लेकिन जहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ऑफ यू नो मुस्लिम्स लाइक पाकिस्तान, इंडिया, वो मुझे लगता है कि वो जितना अच्छे से अपना बिजनेस करते हैं, दे आर मोर इन्फ्लुएंशियल फॉर द सोसाइटी, दे आर मोर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी. एंड आई फील वेरी वेरी ऑनर्ड बहुत सी बार कि मुझे कोई नेकी करने का मौका मिलता है. वो नेकी जो आज से मैं पहले शायद 5 साल पहले मैं नहीं कर सकता था. आज से 5 साल पहले जो मेरी ज़कात थी, आज उसका शायद 40-50x हो चुकी है. तो यू नो बहुत ही ख़ास तो सरियल फील होता है मुझे कि यार अच्छा, इज़ इट द सेम मी जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता था, और नाउ वी बीन एबल टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी. सो अच्छा, ये जो आपने बात बताई ना अबाउट स्ट्रक्चरिंग योर सेल्फ कि स्पेसिफिक बिजनेस के एक स्ट्रैटेजी की तरह, आई थिंक यहाँ पे ना द गवर्नमेंट हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले. देखिए, आई थिंक आपने इसराइल की भी एग्जांपल दी, एंड आई पर्सनली फील कि इट्स अबाउट स्ट्रक्चरिंग. ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना और ये जो गाइडेंस है, ये पॉलिसी से आती है. ठीक है. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम बस देखते हैं कि अच्छा यार यहाँ पे अब, सो फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू लाइक मल्टीपल ट्रेंड्स. एक अभी जेन में मेरे आ रहा है CNG स्टेशंस का. क्या वो ट्रेंड आया था, हर बंदे ने CNG, who had लिटिल बिट ऑफ कैपिटल टू CNG, और अब वो बिल्कुल गोस्ट हाउसेस बन के रह गए, राइट? बिकॉज नोबडी थॉट अबाउट कि यार इसका लॉन्ग टर्म स्कोप क्या होगा, यानी कि व्हाट्स द लॉन्ग टर्म विजन विद दिस. मैं ये लगा तो रहा हूँ, बस उसने देखा कि हाँ यार आज 10 रुपए की आती है, 20 रुपए की बेचेंगे, 10 रुपए लेके घर में बैठ जाएंगे, 100 रुपए की 100 लीटर बेच दिया या 100 kg बेच दी, तो दिन का 10,000 रुपए सीधा कर लिया. यानी कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वो क्विक बक वाले जो सोल्यूशन है ना कि हाउ टू मेक अ क्विक बक, बस उसी के अंदर हम उसी के अंदर ट्रैप्ड हैं और उसमें से निकल ही नहीं पाते. आई थिंक दिस इज वेयर द गवर्नमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी कैन रियली हेल्प कि यार अब जो भी, और आई थिंक दिस इज वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन ऑल्सो. प्रॉब्लम ये है कि देखें, आपका जो पहला बिजनेस है ना वो हैज़ टू बी ऑब्वियसली आपकी भी एक्सपर्टीज नहीं है. इट विल डेफिनेटली बी समथिंग बेसिक को बहुत ज़्यादा, यानी कि यू कैन जस्ट कम इन कि जी मैंने शुरू किया बिजनेस और पहले दिन ही मैंने जी आईफोन बना दिया, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? यू स्टार्ट ऑफ विद समथिंग स्मॉलर, यू स्टार्ट ऑफ विद समथिंग बेसिक. नॉर्मली दैट्स व्हाट हैपेंस. अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में पीपल हु हैव मेड इट इन बिजनेस एज वेल,
उनकी if you look at their portfolio diversification as well, you look at their entire portfolio, तो अभी भी वो basic businesses नहीं है. हाँ हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, आप जो भी बिजनेस क्रिएट कर लें, अगर बेसिक बिजनेस होगा तो उसकी डिमांड तो एग्जिस्ट करती है. तो आप एक बिजनेस, और बिजनेसेस के अंदर है भी ये कि आप एक जितने बड़े स्केल से आप ऑपरेट करते हैं उतने उसके चांसेस ऑफ सक्सेस बेहतर हो जाते हैं. सो आई थिंक दिस इज वेयर गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू इनोवेटिव बिजनेसेस को क्या नाम है इंसेंटिवाइज किया जाए पॉलिसी मेकिंग के थ्रू, और लोगों को डायरेक्ट, यानी कि जो इंक्यूबेटर्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं. बिकॉज देखें, बिजनेस इन अ नटशेल इज अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. ठीक हो गया. और जितनी मैसिव और जितने इनोवेटिव तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस अल्टीमेटली हो सकता है. राइट. एंड जितना बड़ा बिजनेस आपका हो सकता है उतनी ज़्यादा डिपेंडेंस नॉट ओनली ऑन अ लोकल लेवल बट ऑन एन इंटरनेशनल लेवल आप क्रिएट कर सकते हैं. राइट. अभी जो हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी बैठ के कि इफ यू वांट टू गिव, इफ आई आस्क यू टू गिव अप योर आईफोन टुडे, तो यू कैन, दिस इज एन आइडिया दैट वी कैन नॉट, हम फैथम ही नहीं कर सकते. दैट मींस के समवन इन हिज बैकयार्ड और इन हिज गैराज क्रिएटेड अ बिजनेस कि उसने एक बंदा जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर बैठा हुआ है उसकी भी डिपेंडेंसी ऐसी क्रिएट कर ली हुई है और लाइफ लॉन्ग क्रिएट कर ली हुई है कि भाई नाउ व्हेनेवर यू थिंक ऑफ अ मोबाइल फोन द ओनली थिंग दैट कम्स टू देयर इज जस्ट वन कंपनी दैट कम्स टू योर माइंड एंड दैट्स एप्पल. राइट. अब आई नो कि यानी कि अगेन इट्स नॉट जस्ट बिजनेस एक्सपर्टीज और पॉलिसी जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं, बट आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्ले अ ह्यूज रोल इन गेटिंग टू दैट पॉइंट. और हमारा प्रॉब्लम ये हमारे मास्टर में वी आर कम्प्लीटली डिवॉइड. कोई है ही नहीं, यानी कि कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी, इस तरह की कोई सोच कि कोई पॉलिसी बनानी भी है, कोई इस तरह के बिजनेसेस को फोर्स भी करना है, कोई लोगों की डायरेक्शन करनी है कि यार स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग इन दिस फील्ड के इस तरह की कोई चीज़ बन सके, वो अनफॉर्चुनेटली कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती. इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जेस मैंडा के नाम से वो कुछ इस तरह की काम कर रही होती है कि कुछ बिजनेस की जो केस स्टडीज़ हैं और उनकी वर्किंग्स और बिजनेस प्लान वो सबमिट कर रही होती है. लेकिन देयर इज़ अ ह्यूज रूम, और मुझे वहाँ का मॉडल बड़ा अच्छा लगता है टर्की का, जिसमें उनके जो बिजनेस के चैम्बर्स होते हैं उनको जो लोग लीड कर रहे होते हैं दे आर नॉट जस्ट प्योर बिजनेसमैन बट दे आर ऑल्सो यू नो देयर स्पिरिचुअल गाइड्स. तो वो भी लोगों को बताते हैं कि यार देखो हमें ये काम करना है, यानी जो स्ट्रेटेजिकली हमें किस तरह चलना है. फॉर एग्जांपल तो हो सकता है कि कोई बंदा मिलिट्री में कंट्रीब्यूट कर सके, कोई बंदा एग्रीकल्चर में कर सके, क्योंकि जो भी बड़ा काम होता है ना उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है. ऐसी, और जो रिस्क ज़्यादा होता है तो उसका जो पर यूनिट ऑफ रिस्क एज कम्पेयर टू रिटर्न ना वो बहुत सी बार क्या जस्टिफाई नहीं कर रहा होता. तो वहाँ पे यू नीड टू बी वेरी साउंड आइडियोलॉजिकली कि यार और आप दूर आपने देखना होता है. और this is the reason behind me taking this risk. It's not just about the money, it's not just about the business. Exactly. It's about survival. It's about setting ourselves up. यानी कि this is not probably not just for the business perspective. यानी कि on an Excel this might not make sense. But when you look at it from the broader perspective, from an ideological perspective, then these are the basic essential businesses that we need to have. जिसके ऊपर dependence हमारी किसी के ऊपर होनी चाहिए. बिल्कुल सही बात. और उसमें एक बहुत बड़ा रोल खास तौर पे यूएस में जो है ना वो उनके वेंचर कैपिटल का है. Like you can raise $50 million of money, which has a success chance of only 5%. So they have that kind of. उनमें अपने जिक्र हाज़िर, लेकिन देखिए ना उस जिक्र एस्टैब्लिश करने से पहले, यानी कि वो जिक्र आई पर्सनली फील कि वो जो उनका एक है ना they have this ability कि वो इतने बड़े इतने they are able to take these big risks. I think that came afterwards. उस रिस्क क्रिएट करने से पहले इफ यू लुक एट द होल द वे द गवर्नमेंट इज डिजाइन, द वे द इंफ्रास्ट्रक्चर इज, वो इतना ज़्यादा इनकरेजिंग है फॉर इनोवेशन टू टेक प्लेस. ट्रू. यानी कि और इतना ज़्यादा सपोर्टिव है फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़ टू टेक प्लेस. और वो जो उनका ओवरऑल इको सिस्टम है कि आप देखें, यानी मोस्ट ऑफ दोज, यानी कि आई थिंक प्रॉब्ली व्हेन इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो शायद यूरोप वाज वे अहेड ऑफ द यूएस इनिशियली, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें ना. बट देन वो जो एक इकोसिस्टम ऐसा उन्होंने वहाँ पे क्रिएट कर लिया जिसकी वजह से नॉट ओनली वर दे एबल टू क्रिएट दीज पावर हाउसेज, बट उस पावर हाउसेज की क्रिएट करने से फिर वो वीसीज भी आ गए जिनका वो एक थ्रेशोल्ड था ऑलरेडी ये सारे रिस्क लेने का. और आई थिंक उस वो द रीजन वाई दे आर
so confident in taking those risks is because they see that the infrastructure, उनकी confidence build हो गया है कि the resources that we have and the way they are motivated, the chances of this becoming, there are chances of that becoming success. हमारा अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम है कि हम अभी पहले द फर्स्ट स्टेप ही, हम पहली सीढ़ी का जो स्टेप है ना वही पास नहीं कर पा रहे. बिल्कुल सही बात. साथ भाई गवर्नमेंट की सपोर्ट तो नहीं है ना, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, और ना पॉलिसी. तो अभी आई थिंक उनको पॉलिसी मेकिंग के बारे में जब तक वो जागेंगे, बट आई थिंक कि एट एनी पॉइंट इन टाइम हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते, राइट? बिल्कुल. सो एज बिजनेसमैन, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल लिसनिंग टू अस, they are either in the process of starting a business, thinking about starting a business, or they're already into their business journeys, already started off on their entrepreneurship journey, right? तो आप क्या recommend करेंगे कि what should they do and how should they go about it? I think we should always start with something basic, और उसमें जो innovation हो ना वो बस incremental हो, बहुत ही कोई radical innovation ना हो, क्योंकि जब आप किसी भी रेडिकल इनोवेशन पे जाते हैं तो उसमें वो रिस्क आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो मैं ख्याल स्टार्ट विद समथिंग बेसिक, और मैंने भी ऐसा ही किया था कि जो मेरा फर्स्ट बिजनेस था दैट वाज फोल्डेबल वाटर बैग्स. मैंने देखा कि जो लोग खास तौर पर ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और उनको पानी की पड़ती है ज़रूरत, और उनके जो कैन्स हैं वो तो उसमें पानी हो ना हो वो उतनी जगह घेरता है, लेकिन यू नो इफ़ यू फोल्ड इट अप तो पानी जो है वो जगह नहीं घेरता वो. तो बहुत से लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, आज उम्र में भी इस्तेमाल होता है. सो माई फर्स्ट बिजनेस वॉज दैट. इट वॉज अ वेरी सिंपल बिजनेस एंड इट वॉज इनोवेटिव. तो और कोई नहीं कर रहा था, तो आपकी डिमांड अच्छी में आई और मैंने वो चीज़ें की. फिर उसके बाद माई सेकेंड बिजनेस वॉज एसेंशियल ऑयल्स, जिसमें आई वॉज एसेंशियली रीपैकेजिंग द एसेंशियल ऑयल्स. तो एक्सपीरियंस बेहतर दे दिया. अगर कोई चीज़ ई कॉमर्स पे नहीं है तो ई कॉमर्स पे कर दी. तो आपने ऐसे बिजनेसेस उठाने हैं जो लोग अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसमें जो ना फ्रिक्शन सबसे कम से कम हो. और you don't have to put in too much effort to create the product. Nor do you have to put in too much effort to create demand for that product. Exactly. I think starting with basic, even आप बता रहे हैं कि वो foldable water bag, I think my first gig was probably selling t-shirts, printed t-shirts. ठीक हो गया. So यानी कि that उसमें आपके ना वो बेसिक बिजनेस में आपको एक्सपेरिमेंटेशन का मौका मिल जाता है, रिस्क कम हो जाता है, एंड यू गेट अ फ्लेवर ऑफ हाउ दिस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इज गोइंग टू बी लाइक. एग्जैक्टली. और मैं हमेशा सोचता था कि यार क्योंकि मैंने अच्छी जगह से पढ़ा हुआ है तो मैं जो ना फेल नहीं होऊंगा और मेरा तो पहले ही छक्का लगेगा. लेकिन होता ये है कि आपको पहले 1 2 3 बिजनेस में आपको पता चलता है और आप गलतियां करते हैं, चाहे आपने कितनी पढ़ाई क्यों ना हो, क्यों कुछ ना किया, तो वो लर्निंग कर्व है. आई थिंक Exactly. यू स्टार्ट ऑफ विद बेसिक्स एंड यू गेट सेटबैक्स. इंपॉर्टेंट थिंग इज गेटिंग अप आफ्टर एवरी सेटबैक. Exactly. कि बस वो you just keep at it at some point in time ना. But when we look at your यानी जो current जो आपका main business है, right? When we look at that, तो I see a lot of innovation, I see a lot of systems, I see a lot of. तो वो बताएं कि once you started off with the basics, then what? फिर आप क्या? What should be यानी scaling के लिए क्या mindset होना चाहिए? किस तरह से क्या आपके ज़हन में क्या है? How to go about it? Right. तो मुझे याद है कि 2018 में जब हमने स्टार्ट किया तो वी वर अराउंड 3-4 पीपल एंड फिर वंस वी यू नो हमें साफ लग गया कि ट्रैक्शन बहुत आ रही है और डिमांड बहुत अच्छी आना शुरू हो गई. तो फिर हमने जो है वो सबसे पहले लोगों पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, ऑफिस में, सिस्टम्स पे, ट्रेनिंग्स पे, और ऐसे प्रोसेस फ्लोज बनाए कि वो चीज़ें ना प्रोन टू ब्रेक ना हो. तो शुरू के बहुत से अरसा जो है वो तो आपका फायर फाइटिंग गुजर जाता है, लेकिन एक होती सिस्टम्स अप्रोच. सिस्टम अप्रोच ही होती है कि आपने कोई भी मसला है ना वो उस वक्त के लिए सॉल्व नहीं करना, आपने वैसे मसला सॉल्व करना है कि वो आगे 5 साल वो मसला फिर से ना आए. तो यहाँ पे भी बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो अटक जाते हैं. तो मेरे ख्याल में सिस्टम अप्रोच की वजह से और अच्छी पीपल मैनेजमेंट, HR, उनकी ट्रेनिंग, उनके साथ पर्सनल कनेक्शन, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह देन वी आर करेंटली मतलब 2021 में जब तक हम लोग ई कॉमर्स पे नहीं थे सो वी वर अराउंड 40-50 पीपल. फिर जब हमने हमारी आउटलेट्स खोलना शुरू की तो नाउ वी आर 300 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ एंड अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने वी आर एबल टू. मुझे याद है पहले हमें आउटलेट खोलने में तकरीबन कोई 1 साल का अरसा लग गया, खोलें नहीं खोलें, कहाँ खोलें, और फिर उसके बाद जब आपके सिस्टम्स बिल्ड हो जाते हैं तो फिर आपके लिए जो है ना वो बड़ा आसान हो जाता है. सो नाउ वी आर ओपनिंग अप 1 to 2 आउटलेट्स एवरी मंथ. माशाल्लाह. तो फिर ये होता है कि आपने यानी जब सिस्टम समझ में आ गया तो उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, उसको और स्केल करना है. तो स्केलिंग इन इट्सेल्फ
अगर आप मुझे पूछे ना तो इट इज़ एवरी डे प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड जब आप वो प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए सॉल्व कर देते हैं तो फिर वो आपके लिए ग्रोथ करना आसान हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल हमने अपनी जो पहली आउटलेट है उसको खोलने में शायद 1 साल लगाया, अब हम लोग हर महीने में एक आउटलेट खोलते हैं। पहले ये कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो बहुत मुश्किल लगती थी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा अगर आगे पीछे हो गया तो हमारे पास कोई HR नहीं था डिपार्टमेंट, लेकिन अब क्योंकि आपके पास HR डिपार्टमेंट ना तो आप पहले से ही बहुत सारी वर्किंग करके रखते हैं, तो जो एक एक करके आपने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मैंने ये भी एक मसला देखा है कि एक मसला होगा कंपनी में, सबको दिख रहा होगा, लेकिन कोई इसको सॉल्व नहीं करेगा। तो एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। और अगर थोड़ा सा भी फ्रिक्शन है, यानी मैं आज भी अपनी आउटलेट्स पे जाके मैं ये कर रहा होता हूँ नोट कि यार किस चीज़ में उनको कितना वक्त लग रहा है। अब हमने अपने गिफ्ट कार्ड्स लॉन्च किए, उसके साथ बारकोड नहीं था क्योंकि वो उसकी जो एस्थेटिक थी ख़राब हो रही थी, लेकिन मैंने देखा कि यार उनको सर्च करने में देर लग रही है। तो फिर अब इसका हमने हल निकाला कि अच्छा यार कुछ जो ना एग्जाम्पल किसके तौर पे ऊपर कोई बारकोड उसके ऊपर प्रिंट हुए होंगे ताकि हमारा शॉप के ऊपर जो है वो हाँ, ये तो इससे तो आपकी इस एग्जांपल से मुझे वो फार्मूला 1 की वो जो पिट स्टॉप होता है, वो याद आ गया कि वो किस तरह, यानी कि पुराने ज़मानों में आई थिंक इट यूज्ड टू टेक लाइक 15-16 सेकंड्स लग जाते थे, और अब इट्स लाइक आई थिंक अब रिसेंटली मैं फॉलो नहीं कर रहा, बट आई थिंक 1-2 सेकंड में हो जाता है। एग्जैक्टली। आई थिंक आई ऑल्सो अग्री विद योर अप्रोच के आई थिंक स्केलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर स्केलिंग इज क्रिएटिंग सिस्टम्स, एंड क्रिएटिंग सिस्टम्स इन सच अ वे, जो मैं चीज़ ऐड करूंगा इसके ऊपर कि भाई द ओनर ऑफ द बिजनेस, इवन इफ ही इज नॉट अवेलेबल टू द बिजनेस, even if he is plugged away from the business, the systems have been designed in such a way कि भाई the business is operating on its own. True. अच्छा, एक तो ये लेवल है आई थिंक, लेकिन जो एक है ना क्रिएटिंग अ बिजनेस दैट्स बिगर देन योर सेल्फ, उसके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि जो ग्रोथ के मैकेनिज्म्स है ना, कि भाई ग्रो कैसे करना है और ग्रोथ को एग्रेसिवली कैसे लेके चलना है, वो भी इफ़ वी कैन क्रिएट अ सिस्टम और एन एनवायरनमेंट, या हम ऐसे प्रोसेसेस डेवलप कर दें, या हम ऐसे लोग हायर करके ऐसी टीम्स बिल्ड कर दें कि भाई दे आर कंसर्न नॉट जस्ट अबाउट द डेली ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, बट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रेसिव ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. If you're able to figure these two things out, the chances of you being able to create a business that's bigger than yourself are massively increased. Very true. And इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं, जिस तरह आप जब इसको लोग बोलते हैं ना कि you have to work on your business, not in your business. Yes. एंड एक जो चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि लर्निंग जो है ना आपकी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। और लर्निंग ऐसी चीज़ है जो आपको नई होप देती है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा वक्त आता है जब एक एंटरप्रेन्योर को अपने सारे रास्ते दिखते हैं बंद, कि यार मैंने ये भी कर लिया, ये भी नहीं चल रहा, ये भी कर लिया, ये भी नहीं चल रहा। तो वहाँ पर जब आपने अपने आप को सेल्फ लर्निंग के ऊपर ट्रेन किया हुआ होता है तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। हमारा जो अनफॉर्चुनेटली स्कूलिंग सिस्टम है ना, वो होता है धक्का स्टार्ट, लाइक आपको वहाँ पर ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है और पढ़ाई को एक बोझ समझा जाता है, तो वो बहुत सी बार लोगों के मेंटल मॉडल्स जो है ना बड़े गलत बन जाते हैं, वो सेल्फ लर्निंग कर नहीं पाते। लेकिन अगर आप ये कर पाएँ तो मेरे ख्याल में फिर आपको कोई ना स्टॉप नहीं कर सकता और आप बहुत आगे जाते हैं। अग्रीड। और ये आई थिंक ये वाला पॉइंट जो एंटरप्रेन्योरशिप का है ना, आई थिंक प्रॉब्ली दिस इज द मोस्ट unknown factor about an entrepreneurship or about entrepreneurship basically, कि सबसे यानी लोगों को लगता है कि जो एक दफ़ा आइडिया लेके आना है ना वो असल काम है, नहीं, हर रोज एक नया आइडिया लेके आना पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं कोई नहीं, जैसे आपने यू टॉक्ड अबाउट दिस बारकोड वाली थिंग एंड किस तरह उसमें एक प्रॉब्लम हो गई। अब वो देखें ना, यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एस्थेटिकली, आपका प्रॉब्लम एस्थेटिक्स का है, बट अगर एस्थेटिक्स को पूरा करते हैं तो फिर एफिशिएंसी का प्रॉब्लम आ रहा है। नाउ यू हैव टू कम अप विद अ सॉल्यूशन दैट एड्रेसेस बोथ एस्थेटिक्स एंड एफिशिएंसी, राइट? एंड वो जो हम सिस्टम्स की बात कर रहे थे, वो सिस्टम्स की में ये है कि भाई देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस that is identifying these issues and automatically fixing them. So I think with time and you continue to focus on the minor details of your business and then you are able to achieve those things. But I think कि वो जो हम initial बात कर रहे थे स्केलिंग की, I think ये दो चीज़ें कि आप पहले अपने बिजनेस को इस तरह से स्ट्रक्चर कर लें that it can operate without you, and then the second step is कि you can set it up in such a way that it can even grow without you.
यहाँ से फिर आई थिंक इफ यू आर एबल टू कन्फिगर दीज टू थिंग्स आउट ना, तो फिर उसके बाद जो है ना द बिजनेस बिकम्स, उसकी ग्रोथ, स्केलिंग, एवरीथिंग बिकम्स अनस्टॉपेबल. एंड आई थिंक ये वो पॉइंट है जहाँ पे वी कैन स्टार्ट टू थिंक अबाउट क्रिएटिंग businesses that can have an impact. Because पहले तो देखें पहला तो वही again I think I'm repeating myself like a parrot, लेकिन पहला मसला वही है putting food on the table. And once that is done तो फिर आपने business को scale करना है. And वो business की जो scaling है ना, वो focus और attention के बगैर नहीं हो सकती. 100%. If you are sailing in multiple boats, आप उसको उस तरह से बड़ा नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल सही बात. एंड बाय जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग, अब ये देखें ना, आप एक बार कोड और कार्ड और उसका कितने सेकंड्स का इम्पैक्ट है, आपने उस चीज, यू फोकसिंग ऑन वन थिंग, तो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दिस माइनर इशू. एंड अच्छा ये अभी माइनर इशू लग रहा है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस इशू इन 200 आउटलेट्स अक्रॉस द ग्लोब, एंड अब इसमें लेट्स से आप 20 सेकंड्स भी पर ट्रांजैक्शन सेव कर लेते हैं, एंड यू हैव लाइक 100,000 ट्रांजैक्शंस ऑन अ डेली बेसिस, तो जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ सेविंग दैट इट अल्टीमेटली एंड्स अप डूइंग, राइट? बट दिस कैन ओनली बी डन वंस यू हैव दैट फोकस and your focus, if your attention is not diverted. But I think once you have scaled it to a certain level jahan pe it's operating without you, it's growing without you, that is the point jahan pe you can start thinking about now diversifying or investing in businesses that can create an impact. True. That are not the businesses that you'll be doing not just for the sake of doing business, but for the sake of creating change. Or I think इस point से पहले करना is actually suicidal for your own business journey. ट्रू. इसी में मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस के हाव पे बात करते हैं कि यार ये बिज़नेस कैसे होगा, मार्केट फिट, बिजनेस प्लान, लेकिन वाई के ऊपर भी बहुत बाय करनी चाहिए. और एक किताब थी उसमें ये लिखा हुआ था कि जो ग्रेट कंपनीज़ हैं वो वाई के ऊपर बहुत बात करती हैं. जैसे एप्पल है, तो वो जो स्टीव जॉब्स हैं वो बार बार इस चीज़ को एक एयर टाइम बहुत देते थे कि वाई आर वी इन दिस बिजनेस, सो वी आर हेयर टू अनलॉक द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ पीपल, मेक लाइव्स ईजियर फॉर पीपल. तो वो क्या है कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक सेंस ऑफ पर्पस देता है, और फिर वो भी आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देती है. क्योंकि अगर आप सिर्फ हाउ की बात करते रहेंगे तो मुझे लगता है आपकी ग्रोथ एक टाइम पे आकर अटक जाएगी. और तो इसके लिए और हाउ और जो वाई है, मुझे लगता है कि वो हमारा जो दीन का फ्रेमवर्क है उससे बेहतर कोई नहीं दे सकता. कि भाई एक उसमें हदीस है ना कि एक इंसान, सबसे अच्छा इंसान वो है जो कि दूसरों के लिए अच्छा हो. तो एक मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है जिसके ऊपर हमें बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए. दूसरा ये कि हलाल कमाना. तीसरा ये कि अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करना. और एक और मुझे बड़ी मज़े का पर्सपेक्टिव मुझे मिला, वो ये कि आता है कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट से जितना भी खैर निकल रहा है उसमें भी आपका अजर हो जाता है. तो अगर आप किसी मुल्क के बारे में सोच रहे हैं और उस मुल्क में ही हमारी सारी चीज़ें हैं, यानी हमारी मसाजिद, हमारे यानी जो भी नेक काम, तो इफ़ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट कंट्री, दैट ऑल्सो बिकम्स योर अजर. सो आई थिंक वाई हमारा इतना खूबसूरत है, इतना ब्यूटीफुल है कि हमें इंटेंशंस करते रहनी है और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ग्रिड के साथ काम करते रहना है, तो काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है. लाइक वी हैव अ मच मोर सुपीरियर फ्रेमवर्क देन दी वेस्ट. अग्री 100. और इसी आपकी यही वाली बात ना कि बिकॉज आई थिंक दीन का मिजाज इज लिविंग फॉर दिस full in a nutshell. True. कि भाई like you have whatever, और it ultimately links back to the hereafter and everything ना. और उस perspective से I think ये जो हम discussion भी करें, I think we have been very lucky in the sense कि हम अपनी business journey जहाँ से भी शुरू की, अभी भी I don't think आपसे मिलने के, in person मिलने के बाद तो मेरा और ये belief पक्का हो गया कि you don't think you've made it yet. And that's exactly, I think when you have bigger visions, so it takes time and you continue to keep grinding till you achieve those visions. But I think we have had our fair portion of successes, big wins, small wins, and alhamdulillah. And इससे ना मुझे ये feel होता है कि there are so many kids, because I used to, at some point in time in my life, I used to teach kids as well. Or I still try to, whenever I get a chance, to mentor kids who are thinking about starting their own businesses, या who are in their businesses and they want to scale them, or they're thinking about कि भाई अब आगे what's next, या क्या करना है. तो I think कि I would personally like to end this video on a note कि anybody who thinks after having listened to our discussions and they think they are thinking about starting a business and they need any help or support, we would love to
I would love to help them out. And if they are already doing businesses and they're struggling and they're trying to understand how to scale them and they're not being able to find the right network, right people, or any other systems related problem, I personally think that if we can do that also, it will be a huge service to society. Sure, and likewise, मैंने भी अपना जो Facebook page है, I have Instagram, LinkedIn, and I always try to help people who are stuck, because at one point in time I was also stuck and I was really struggling to find help, relevant help. That was around 8-10 years ago. Fortunately, अब जो हेल्पिंग का जो इको सिस्टम है वही बहुत डेवलप हो गया. देयर आर मैनी फेसबुक ग्रुप्स, देयर आर रेडिट फोरम्स, देयर आर व्हाट्सएप ग्रुप्स. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी माहौल बन गया. एंड आई थिंक अगर हम लोग एक अच्छी नीयत के साथ हेल्प करते हैं तो ओवरऑल वो कहते हैं ना कि पेड फॉरवर्ड वाला सीन, ऐसे ही है. तो वो एक ऐसी हवा चल पड़ती है आपके मुल्क में, आपकी कम्युनिटी में, कि जिससे सबको फ़ायदा होता है और वो फिर दैट गुड्स कम्स बैक टू यू इन सम फॉर्म ऑफ शेप. And you lose count of the what you created और उसका क्या spill over effect आ रहा है आपके पास वापस इंशाल्लाह. एग्जैक्टली. तो चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे ऑफिस आए और बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी. And looking forward to hosting you in Lahore sometime inshallah. इंशाल्लाह. Thank you so much. Saad bhai, jazakallah. अल्लाह हाफिज़.